हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी 2 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, एंड इस पर एक कंडीशनली प्रोबेबिलिटी है, उसकी डेफिनेशन, ओके, एंड जनरल आइडिया, इंट्रोडक्शंस अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी of the conditional probability. So on that, questions also done. Exercise 13.1, question 1 to 7 done in last 2 lectures. These much done in probability. Now forward continuously. Exercise 13.1 NCERT book से question 8 onward we have to do. Today this lecture third lecture होगा on this chapter probability 13 chapter. Okay, now question number 8 is a die is thrown 3 times. अब die thrown 3 times, तो total number of outcomes in this sample space कितना बनेगा? सॉल्यूशन में वो बनेंगे आपके 6 पावर 3, बिकॉज एक डाई थ्रो करने में 1 टाइम्स वो 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यू नो वेरी वेल। एंड जब 2 डाइज करते हैं तो 6 पावर 2, 6 पावर n, 3 डाइज 6 पावर 3। ओके, तो इन वन थ्रो ऑफ वन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी आउटकम, that is the base, and power how many that objects you are throwing together, or how many times you are throwing that object, so that will be power n. So means 6 power 3 means 6 6 is 36, 36 is 212. Okay, 212. So total number of outcome in this sample space, number of outcome in this sample space is equal to 216. Okay, this total number of outcome 216. So use this for this probability. 4 appears on the third toss. E event is 4 appears on third toss. फर्स्ट एंड सेकंड पर सभी आएंगे, तो फर्स्ट सेकंड पर थर्ड पर 4 फिक्स कर दिया गया, तो 1 2 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 2 1 4 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 and 5 1 5 2। then 2 डाइस फर्स्ट एंड सेकंड पर 2 डिजिट नंबर वो 36 बनेंगे, उनमें थर्ड पर फिक्स है 4, एवरीवेयर 4, थर्ड टॉस 4, तो देन these are 36. तो number of outcome in this, number of outcome in E कितने बन गए? 36. Okay, this with on third toss 4 is fixed. This is E. After that F 4 appears on the third toss, then 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. तो 6 and 5 respectively फिक्स कर दिए गए फर्स्ट 2 टॉस पर 6 5, तो थर्ड चेंज होगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, तो दिस इज योर F। तो इन दैट इन दिस 6 5 यहाँ पर 1 एलिमेंट है एंड देन 4, तो 6 5 6 5 4, 1 एलिमेंट इज कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ E intersection F will be the set only one element 6 5 4. This clear? So this probability of E conditional F, E intersection F, so probability of E conditionally F will be equal to probability of E intersection F,
You know formula. Then E intersection of common element. This only one element is common. So one probability 1 upon 216. Total number of outcome in the sample space 216. Okay. Done. Divide by probability of F. F is this here. How many total outcome in F? 6. 6 total outcome upon 216. Then this will be equal 1 upon 216 and divide का multiply 216 upon 6. Then cancel this 216, then is equal to 1 upon 6. So this is your answer, probability of E condition F. Done. Clear? Now next question. Yes, beta. Next question. Question number 9. Mother, father and son line up at random for a family picture. Clear? तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा वो बना लेंगे. एंड ई सन ऑन वन एंड, ई सन एक ही एंड पर एंड एफ फादर इन मिडल. तो क्या बनेगा, पहले सैंपल स्पेस बनाओ. अब फादर मदर सन, ये बन गया लाइन. या फादर सन मदर. ओके. और अब मदर से शुरू कर सकते हैं. मदर फादर सन और मदर सन फादर और सन मदर फादर और सन फादर मदर. ये ऑल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम ये 6 बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. F denoted father, S denoted son and M denoted mother. Let us suppose then these 6 outcomes all. तो यहां इससे क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन गए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 6. डन. अब आपका E इवेंट क्या है. E अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सन ऑन वन एंड. अब सन वन एंड का मतलब सन शुरू में भी हो सकता है, मदर फादर सन शुरू में होकर फादर मदर, और सन एंड में हो सकता है मदर फादर सन और फादर मदर सन एंड में. तो कितने एलिमेंट बनेंगे, ये 4 बनेंगे. दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई is equal to 4. Clear this? Okay. Now F, according to question, what is F? F is the event father in middle. तो फादर मिडल में रहना है तो मदर इधर हो सकती है, फादर मिडल में, सन लास्ट में, और सन शुरू में, फादर मिडल में एंड मदर एंड में. ओके. फादर मिडल में होना चाहिए. ओनली दीज टू. क्लियर. तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ. हाउ मैनी? 2. कॉमन एलिमेंट इन दीज बोथ ई एंड एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट कॉमन एलिमेंट. अब देखिए, मदर फादर सन, मदर फादर सन, दिस इज कॉमन एलिमेंट 1. अदर सन फादर मदर, सन फादर मदर,
these two element common element, तो this is same common element, mother father son, son father mother, same intersection, what is f? तो number of element in e intersection f, ये कितना बन गया, e intersection f सॉरी, is equal to also 2. So probability of E condition F, probability of E condition F is equal probability of intersection formula, you know I have written, so now direct put our formula we can write, probability of E intersection F divided by probability of F, then नंबर ऑफ आउटकम तुम्हारे पास है इंटरसेक्शन में 2 है कॉमन, 2 अपॉन टोटल आउटकम 6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में भी 2 है डिवाइड बाय 6, तो देन 1 आंसर. ओके क्लियर डन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, ठीक है, दोनों एक ब्लैक एक रेड टुगेदर. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 दोनों के. तो डाइस पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों पर 1 2 3 4 5 6, एक ब्लैक वाली एक रेड वाली, तो दोनों इकट्ठी कर रहे हैं तो कितना आउटकम हो गया टोटल सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट. ओके क्लियर, 36 you know sample space, no need to make the full number of element in sample space, you can write 36 which you know very well. Okay, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3. ओके लाइक दिस. पहली डाई लेट ऑर्डर ले लो वही, रेड और दूसरी पहली ब्लैक दूसरी रेड. अब मेन थिंग व्हाट इज गिवन, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक डाई में 5 ही रहे, तो इनको हम ए और ई बना लें. तो सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, अब पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिख लो. सैंपल स्पेस हमारा 2 डाई का है तो 36 हो गए, ठीक है बेटा. इसके बाद आप ई सेट बना लो. ई क्या बनेगा, ई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 ई है, तो सम ग्रेटर देन 9, ध्यान देना ग्रेटर देन 9 का मतलब 1 2 प्लस 6 नहीं होता, 3 प्लस 6 9 होता है. अब ग्रेटर देन 9 9 नहीं है तो 4 6 4 6 है ना, फिर 5 5 ग्रेटर देन 9. ओके 5 6 ओके 6 6 ग्रेटर देन 9 सम होना चाहिए. 4 6 हो गया. अब मान लीजिए 4 5 लेना चाहते हो तो 9 बनेगा, तो नहीं बनेगा. यहाँ 5 4 लेना चाहते हो वो भी 9 बनेगा, नहीं बनेगा. 6 कोमा अब 6 से बनने वाले 6 5 5 6 6 5 भी बनेगा. ओके 6 4 6 4. ओके क्लियर, और कोई नहीं, यही बनेंगे. अब एफ
एफ क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन दैट, ये एफ होता है गिवन दैट द रिजल्ट ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5, पहले वाला ब्लैक, लेट अस सपोज पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, तो ब्लैक रिजल्ट इन ए 5, तो 5 चाहिए ब्लैक में, सिर्फ ब्लैक 5 ये है यहाँ, ये ब्लैक 5 है तो ये 1 भी हो सकता है, ब्लैक 5 ही रहना है, ये 2 हो सकता है, ब्लैक 5 ये 3 हो सकता है रेड वाला, और ब्लैक 5 फिक्स है ये 4 हो सकता है, और देन 5 5 एंड देन 5 6। ब्लैक जो है लेट फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, ओके क्लियर। तो ब्लैक इन ए 5 ओनली 5, तो ये आपका एफ बन गया। अब इनमें कॉमन एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्या बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन 5 5 ये 2 कॉमन है, 5 5 5 6, 2 एलिमेंट कॉमन, तो देन 5 5 5 6, क्लियर, हाँ जी डन। तो अब इसका कंडीशनली निकाल दो, क्या फाइंड करवाया इसने, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 यानी ई कंडीशन एफ, दिस इज इक्वल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, ओके ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्लियर। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ 2 एलिमेंट, total number of element in sample space 2 dice rolled, so we should write number of element in sample space 2 die 36, okay, then 2 upon 36 divide by f, f कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट 36, then this implies 2 upon 36 multiply reciprocal 36 upon 6, divide का multiply 36 cancel, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, then 1 upon 3 answer of A part, डन। बी पार्ट, अब बी का सॉल्यूशन भी कर देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, सम एग्जैक्ट 8, तो ई इज सम 8, तो ई इज इक्वल टू सम 8, सम 8, सम 8 क्या बनेगा सम 8, अब जैसे हमारा सम 8 है तो 1 से तो बनेगा नहीं, 1 और 6 मैक्सिमम 7 होता है, 2 से बनेगा 8, 2 6 2 6 8, उसी में तो 6 2 भी आएगा, और 3 5 8 5 3 8 4 4 8 एग्जैक्ट 8 एंड 3 5 8 आ गया, 5 3 8 और कोई नहीं है 8, these only, okay, some exact 8, clear, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, done। Now f
एफ में क्या है हमारा, इज गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड ए नंबर लेस देन 4, रेड डाई सेकंड वाली लेस देन 4, 4 नहीं लेस देन 4 यानी 1, 1 के साथ यहां पर 1 भी हो सकता है, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, ओनली लेस देन 4 एक कंडीशन लगाई, रेड लेस देन 4, रेड मीन सेकंड वन लेस देन 4, तो मीन्स ये सारे 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब 2 हो सकता है सेकंड, 2 6, 2 5, 2 4, 2 3, 2 2, 2 1, तो 1 2 लेस देन 4, तो 1 2, 1 3 लेस देन 1 लेस देन 4, 4 नहीं लेस देन 4, तो मैं 3 तक यानी 3 2 दिस, ओके, देन 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, this is only resulted a number less than 4, यानी लेस देन 4 का मतलब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट डाई पे कोई भी आ सकता है, फर्स्ट डाई पर 1 भी है, 2 भी है, 1 2 5 भी है, 6 भी है फर्स्ट डाई पर, ठीक है। तो दिस 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18, 18 बन गए लेस देन 4 करने पर, ठीक है, ओके। तो 18 एलिमेंट इसमें बन गए, इसमें 1 2 3 4 5 बन गए, तो आपका इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, व्हाट विल बी कॉमन एलिमेंट, एग्जैक्ट लास्ट पर 3 3 2, सेकेंड रेड लेस देन 4, लेस देन 4 इनमें नहीं है, ओनली 2 एलिमेंट 6 2 5 3, 6 2 and 5 3, so these are the two only, 6 2 5 3, these are the two common element, then so this implies probability of E condition F will be equal to common element direct 2 upon total outcome 36 divided by F. How many element? 18 divided by 36. Okay, clear? So this 36 36 cancel, then 2 by 36, so 1 by 18, 1 by 2 से 18 डिवाइड होगा, 2 by 18 या 1 by 9, आंसर सिंप्लीफाई करें, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 1 by 9, डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, a fair die is rolled, consider events E 1 3 5 set, F event 2 3, G event 2 3 4 5, and find the first part probability of E condition F and probability F condition E, second E condition G and G condition F, and third probability E union F condition G and probability E intersection F condition G. Okay, we have to find, very simple formula, direct E and F you have here, so direct we can find probability of E
condition F. E and F here given, so direct we can use intersection common. Probability of E intersection F divided by probability of F equal E intersection F. We calculate E intersection F. We should calculate common element. क्या बनेगा कॉमन एलिमेंट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई एंड एफ गिवन, तो कॉमन कौन सा है? ओनली थ्री, ओनली थ्री इज कॉमन. अच्छा जी, और इसमें जी ई एंड जी भी निकाल लो. ओके, ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी. ओके, दिस ई इंटरसेक्शन जी, जी और ई में कॉमन 1 3 5 2 3 4 5, तो 3 5 इज कॉमन. ओके, क्लियर? ये दोनों निकालिए, और जो जरूरत पड़ेगी और निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है बेटा, क्लियर? नाउ यूज हियर दिस 3, ओनली वन एलिमेंट 3 अपॉन टोटल आउटकम, total probability a die, here a die is rolled. Die is rolled means number of element in full sample space कितना? 6 a die. Okay, clear? Divide by F, probability F. F कितने हैं? 2 एलिमेंट है F में, एंड डिवाइड बाय 6, तो ये बन गया आपका कितना? 6 से 6 कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल होकर 1/2. डन, आंसर. ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइस वर्सा एफ कंडीशन ई, तो इंटरसेक्शन तो सेम आया 1/6 डायरेक्ट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? ई 3 एलिमेंट है आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 3 डिवाइड बाय 6, देन दिस 6 6 cancel 1/3. Done. Clear? Yes. Now second part. What is second? सेकंड में ये आपका E कंडीशनली G, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशन G probability of intersection of both E and G divided by probability of G. E intersection G, how many element? 2 upon total 6. G में कितने एलिमेंट है? 4, total 6. Then this implies 6 से 6 कैंसिल, रेसिप्रोकल होकर 2/4, then 1/2. Okay, now probability of वाइस वर्सा G कंडीशन F, अब इंटरसेक्शन तो सेम होगा, कॉम्यूटेटिव होते हैं, E इंटरसेक्शन G या G इंटरसेक्शन E दोनों सेम होंगे, तो 2/6 डायरेक्ट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E. नाउ E, सॉरी F, सॉरी G, E G G E, yes. तो इंटरसेक्शन एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E means 3 element upon 6. Done. Now this simplify, 6 is cancel, रेसिप्रोकल होकर 2/3. Clear? This is your second part का second. Now third part, understand third. Here E union F,
probability of E union F, condition G, this formula लिख लो, probability of E union F है तो probability of E condition G plus probability of F condition G minus probability of E intersection F condition G. This, okay, use this formula. Then this probability of E condition G. What is E condition G? We have calculated E condition G, this probability 1/2 above calculated plus F condition G, F condition G हमने नहीं कैलकुलेट किया है, F condition G नहीं किया, तो F condition G हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, F condition G तो क्या लिखेंगे? F condition G में probability of F intersection G divided by probability of G. Okay बेटा, and minus E intersection F. We know E intersection F. What is E intersection F? One element है. Intersection F, one element. Okay, and divide by condition G. दोनों का इंटरसेक्शन 1 आ गया. E intersection F, इंटरसेक्शन F 1 एंड G में कौन सा है? G, ये तो इनमें इंटरसेक्शन दोनों में मिलाकर ये 3 आएगा, 1 एलिमेंट डिवाइड बाय 6. ठीक है बेटा, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G. प्रोबेबिलिटी ऑफ G में कितने? 4 एलिमेंट, 4/6. सॉल्व किया तो ये 1/2 प्लस ये F इंटरसेक्शन G, F एंड G में कॉमन, F एंड G कॉमन 2 3 2 3 यानी 2 एलिमेंट. इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा, क्लियर? इंटरसेक्शन 2 कॉमन एलिमेंट एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G में कितने एलिमेंट है? 4/6. this. Okay, then minus this, ये 1/4 बनेगा, रेसिप्रोकल होकर -1/4. डन. ओके, सिंप्लीफाई. सो दिस इंप्लाइज 1/2 एंड ये रेसिप्रोकल होकर 6 कैंसिल, 2/4 मीन्स 1/2. 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4. तो ये बन गया कितना? दिस इंप्लाइज 1/2 1 माइनस 1/4 3/4. This implies 3/4. Clear? Reciprocal of similarly this E intersection F. Okay. Similarly, we calculate that E थर्ड पार्ट का लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection and E intersection of G, intersection of G, no, union, here union. वो इंटरसेक्शन हमने कर लिया, अब यूनियन फाइंड करेंगे. ओके, E
E intersection F condition G. दिस हमने अभी फाइंड किया उसी में. तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G. ओके बेटा. तो इनमें इंटरसेक्शन E F G. पहले E F में E एंड F कॉमन एलिमेंट 3 एंड देन कॉमन एलिमेंट G 3 कॉमन है तीनों में. देन दिस वन एलिमेंट only 3 common, one element, number of element 1 and divide by probability of G. Probability of G 4 upon 6. This implies reciprocal cancel 6, then 1 upon 4. Answer. Done. So like this we can do. ठीक है. Now next and the last question. हाँ जी बेटा. Next question, question number 12. What is assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. यानी 50-50 दोनों के चांस हैं. इक्वली लाइकली जैसे कॉइन में होता है टेल एंड हेड 50-50 है. ओके. बट वो फेयर कॉइन में फाइनलाइज्ड है. बट ये लेट अस सपोज एज्यूम किया गया है. ओके. कैसा है. ओके. इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो उनका सैंपल स्पेस बनाओ. पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा. 2 चिल्ड्रंस का बॉय गर्ल. ठीक है बेटा. बॉय गर्ल. ठीक है. गर्ल बॉय दोनों ही गर्ल दोनों ही बॉय हो सकते हैं. 4 एलिमेंट 4 आउटकम. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4. क्लियर. ये रिजल्ट मिल गया. सेकेंड पॉइंट. ई क्या है हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है. व्हाट इज द कंडीशनल प्रॉपर्टी. बोथ आर गर्ल. बोथ आर गर्ल्स. तो ई बोथ आर गर्ल्स. तो ये सेट बन गया. ई इवेंट क्या एलिमेंट कौन कौन सा है. बोथ आर गर्ल है तो जी जी एक एलिमेंट. ओके. एंड एफ. एफ क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए. द यंगेस्ट इज गर्ल. यंगेस्ट इज गर्ल. अब यंगेस्ट इज गर्ल. पहली गर्ल है. दूसरा बॉय हो सकता है. दूसरी गर्ल भी हो सकती है. यंगेस्ट गर्ल. तो यंगेस्ट गर्ल छोटी भी गर्ल हो सकती है. बड़ी गर्ल है तो छोटी बॉय भी हो सकता है. गर्ल भी हो सकती है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू this implies probability conditionally E on F is equal intersection of both E and F probability divided by probability of F. Now intersection common element in
both we can find E intersection F. क्या सेट बना? कॉमन. E एंड F में कॉमन बन गया आपका ओनली वन एलिमेंट G. This is common element. So use here. Then this intersection one element out of 4 divide by probability of F. F में क्या है? 2 एलिमेंट अपॉन 4. देन रेसिप्रोकल किया, 4 कैंसिल, 1/2. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, फॉर सेकेंड ई तो सेम है, एफ चेंज है. एफ क्या है? एट लीस्ट वन इज ए गर्ल. एट लीस्ट वन इज ए गर्ल. कोई सी भी गर्ल हो गई, गर्ल बॉय गर्ल, एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल, दोनों भी गर्ल हो सकती हैं. ये आपका एफ बन गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस implies probability of E condition this F will be equal to common probability of E intersection F common. E intersection F. अब कॉमन एलिमेंट E एंड F, ओनली वन एलिमेंट G. क्योंकि E तो फिक्स है. क्या फिक्स है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट बोथ आर गर्ल्स. ठीक है. सो इसके तो देन कॉमन एलिमेंट डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो. कॉमन एलिमेंट ओनली वन आउट ऑफ 4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. F में कितने हैं? 3 एलिमेंट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F 3/6. सॉरी 4. टोटल आउटकम 4. देन रेसिप्रोकल, 4 कैंसिल, देन 1/3. आंसर. क्लियर? ओके. नाउ दिस इज कंप्लीटेड. एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए. घट तो घट, कम से कम एक गर्ल. ओके. नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट. और उनको भेजे जिनके बच्चे जो है 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं. और बाकी सभी कॉन्टेक्ट को भेजें, उनको गाइड करें कि आप पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, फिर वीडियो के लिंक खुल जाएंगे. मैं लिंक भेज रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, और वो लिंक तभी खुलेगा जब वो सब्सक्राइब कर लेंगे. उन्हें गाइड कर दो. और हर एक लिंक में 10th क्लास का एक लिंक है, उसमें सारी वीडियो 10th क्लास की है, फुल सिलेबस, फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग. सिमिलरली 11th क्लास एंड 12th क्लास का एक लिंक है. और वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट. और अपने फ्रेंड्स को भी भेजे, उन्हें आगे गाइड करना है कि अपने फ्रेंड्स को भेजे, उन्हें सेम गाइड करें और कहें उनको सब्सक्राइब करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तभी वीडियो खुलेगी, वो लिंक जो दिया है वो खुलेगा. ओके. Thank you. Send the feedback also, comment also in the comment box. Thank you.